Bismillahirrahmanirrahim. Our next topic is lipids. Lipids are the organic compounds, heterogeneous organic compounds that are insoluble in the water. This is basically its physical property. But the lipids are actually soluble in the non-polar organic solvent. For example, lipid water के अंदर soluble नहीं होते, लेकिन they are soluble in the alcohol, in the chloroform, isomyl alcohol, etc. So वो organic compounds में ये soluble होते हैं और वाटर में ये insoluble होते हैं because ये खुद भी नॉन पोलर होते हैं. सो नॉन पोलर डिजॉल्व, नॉन पोलर एंड पोलर डिजॉल्व, पोलर लाइक डिजॉल्व लाइक के फिनोमेना पे ये एक्ट करते हैं. लिपिड इज़ अ क्लास बेसिकली, और इसकी टाइप्स फैट्स हैं, ऑयल्स हैं, स्टेरॉइड्स हैं, वैक्सेस हैं, अदर रिलेटेड कंपाउंड्स. सो फैट्स और लिपिड्स ये आर नॉट द सिनोनिम्स. लिपिड इज़ अ क्लास ऑफ द कंपाउंड, जबकि फैट्स इसकी एक एग्जांपल है. फैट्स हैं, कोलेस्ट्रॉल है, oils हैं, waxes हैं, all these are the examples of the lipids. So pure lipid, physical properties of the pure lipid is such that they are colorless, odorless and tasteless until unless they are not rancid. ये rancid ना हो जाए, ये pure form में हो, तो fats जो हैं ये they are colorless, odorless and tasteless. Among all the different type of the organic of the biomolecules like protein and carbohydrate, lipid are the only organic compound which are the highest, the richest energy source. The richest energy source होते. Nutritional value, if we compare the nutritional value of the protein and the carbohydrate with the lipid, so both protein and carbohydrate, इनके 1 gram produces 4 kilocal energy, जबकि lipids 1 gram 9 kilocal energy produce करता है. So that's why we call it as the energy rich organic compounds. If we classify the lipids based on their composition, so lipids may be either the simple lipids or the complex lipids or the derived lipids. So simple lipids, they are just the esters of the fatty acid with the various alcohol. Esters are fatty acid with various alcohols. For example, fats. Fats are actually the esters of the fatty acids with the cholesterol. Esters वो bond जो अल्कोहल और एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड के दरमियान बने, उसको ईस्टर्स बोलते हैं. तो बेसिकली चूंकि फैटी एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और अल्कोहल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, सो व्हेन फैटी एसिड इट मेक ईस्टर्स बॉन्ड विद द अल्कोहल, सो दी ईस्टर कंपाउंड्स आर कॉल्ड द सिंपल लिपिड्स. इनमें फॉर एग्जांपल अगर फैट्स हैं, फैट्स एग्जांपल्स हैं, तो फैट्स में अमूमन जो अल्कोहल होते हैं, जो कि फैटी एसिड दोनों में होंगे, वैक्सेस में भी होंगे और फैट्स में भी होंगे, और बाकी जो कॉम्प्लेक्स लिपिड्स हैं इनमें भी फैटी एसिड होंगे. फैटी एसिड आर द एसेंशियल कंपोनेंट, जो चीज़ चेंज होगी वो अल्कोहल होगा. तो सिंपल लिपिड्स में फैटी एसिड कोलेस्ट्रॉल के साथ एक्चुअली ईस्टर बनाता है. इट्स अ ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल, सो जिसको हम ग्लिसराइड्स भी बोलते हैं. अगर फैटी एसिड अगर कोलेस्ट्रॉल के साथ सिंगल फैटी एसिड मॉलिक्यूल ईस्टर बनाए तो उसको हम मोनोग्लिसराइड, 2 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल तो डाइग्लिसराइड, 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल तो ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं. और फैट्स की वेल नोन एग्जांपल्स ऑयल्स, फैट्स, ऑयल्स जो जनरली दे एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट. Waxes, esters of the fatty acid with a higher molecular monohydrical alcohol. Glycerol is a trihydrical alcohol. So if the fatty acid, higher molecular, long chain fatty acid, they make the esters with the monohydric alcohol. So such a kind of the lipids are called as, simple lipids are called as the waxes. Then the next class is the complex lipids. Complex lipids. So esters of the fatty acid containing groups in addition to an alcohol and the fatty acid. And for example, simple lipids हैं, for example glycerides हैं, where the fatty acid it makes esters with the glycerol. अगर glycerol के एक हाइड्रोक्सिल के साथ कोई और ग्रुप अटैच हो जाए, फॉर एग्जांपल फास्फोरस ग्रुप अटैच हो जाए, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजनस बेस कोई अटैच हो जाए, तो ऐसे लिपिड्स को कॉम्प्लेक्स लिपिड्स बोलते हैं. सो कॉम्प्लेक्स लिपिड्स की एग्जांपल फास्फोलिपिड्स हैं, ग्लाइकोलिपिड्स हैं. फास्फोलिपिड्स की एग्जांपल्स में फिर ग्लाइसिरोफास्फोलिपिड्स हैं, स्पिंगोफास्फोलिपिड्स हैं. एज आई सेड के लिपिड्स में फैटी एसिड तो कॉमन रहेगा, लेकिन जो चीज़ चेंज अगर होगी जिसकी वजह से क्लासेस चेंज होती हैं वो है अल्कोहल.
जो कि सिंपल लिपिड्स में कोलेस्ट्रॉल होते हैं। वैक्सेस फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ द ट्राइग्लिसराइड, वैक्सेस में ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं। कॉम्प्लेक्स लिपिड्स में इन्हीं सिंपल लिपिड्स के साथ कुछ एडिशनल मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल ग्लाइसिरोफॉस्फोलिपिड्स हैं तो इनमें अल्कोहल कोलेस्ट्रॉल होगा। इन्हीं कोलेस्ट्रॉल के दो हाइड्रोक्सल के साथ ईस्टर बॉन्ड फैटी एसिड बनाएंगे और एक हाइड्रोक्सल के साथ फास्फेट ग्रुप अटैच होगा। स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स में अल्कोहल स्फिंगोसिन होगा और फैटी एसिड अटैच होंगे और फास्फोरस ग्रुप अटैच होगा। सो दैट्स व्हाई glycerophospholipids and sphingophospholipid they are regarded as because of their change of the alcohol. और ग्लाइकोलिपिड्स फॉर एग्जांपल ये ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स हैं। अब नेम से ऑब्वियस है कि इनमें फैटी एसिड ईस्टर बॉन्ड बनाएगा विद द स्फिंगोसिन अल्कोहल और उसके किसी एक हाइड्रोक्सल के साथ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स अटैच होंगी। The other complex lipids examples are the sulfolipids and the aminolipids. नेम से obvious है lipoproteins के, इनके साथ additional जो moieties अटैच होंगे या वो सल्फर moieties होंगी, amino groups होंगे या proteins अटैच होंगे। The third category is the precursor and the derived lipids. Precursor के जो किसी और lipids की class को synthesize करवाएं, जिनका starting molecule हो ये lipids, या वो derived हो या simple से या complex lipids से। फॉर एग्जांपल ये उनके हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ट्राइग्लिसराइड्स हैं, जब ट्राइग्लिसराइड्स हाइड्रोलाइज होंगे सो ऑब्वियसली दे विल जनरेट द फैटी एसिड, फ्री फैटी एसिड एंड द ग्लिसरॉल। सो वी कैन से कि फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल दीज आर द डिराइव्ड लिपिड्स। और इसी तरह फॉर एग्जांपल स्टेरॉइड्स हैं, दे आर द प्रिकर्सर ऑफ द कोलेस्ट्रॉल। सो हर वो लिपिड्स के मॉलिक्यूल जो किसी और क्लास ऑफ लिपिड के लिए एज अ स्टार्टिंग मॉलिक्यूल के तौर पर एक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल वाइटामिन हैं, वाइटामिन डी है, इनका जो रिंग स्ट्रक्चर होता है वो स्टेरॉइड बेस्ड होता है। सो वी कैन से दैट दे आर द डिराइव्ड लिपिड्स आर द प्रिकर्सर लिपिड्स। कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जिनके जो बैकबोन्स होते हैं, जो उनका प्रिकर्सर मॉलिक्यूल होता है वो स्टेरॉइड होता है। सो हर वो लिपिड जो हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट हो लिपिड्स के, सिंपल लिपिड्स के, कॉम्प्लेक्स लिपिड्स के, या जिनके एक स्ट्रक्चर जो हैं वो यूज़ हों for the synthesis of the class of the lipids. For example, triglycerides हैं, this one is the structure of the cholesterol. Cholesterol is a 3-carbon trihydroxy alcohol. और ये fatty acids हैं। Fatty acids are simple the carboxyl containing organic compounds. So for example ये carboxyl group है COOH। तो फैटी एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप का हाइड्रोक्सल और अल्कोहल का हाइड्रोजन, जो कि एक नॉर्मल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बातें एक्सप्लेन होती हैं, ये आपस में रिएक्ट करके ईस्टर बॉन्ड बनाते हैं। सो अगर फॉर एग्जांपल एक फैटी एसिड एक हाइड्रोक्सल के साथ अटैच होगा तो इसे मोनो ग्लिसराइड, अगर दो फैटी एसिड मॉलिक्यूल अटैच होंगे तो इसे डाइग्लिसराइड, और अगर ग्लिसरॉल के तीनों हाइड्रोक्सल के साथ 3 फैटी एसिड 1 फैटी एसिड ईच विद 1 हाइड्रोक्सल, ये अगर ईस्टर बॉन्ड बनाएंगे सो एज ए रिजल्ट जो सिंपल लिपिड्स बनते हैं उनको ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं। वैक्सेस हैं, ईस्टर्स ऑफ वी कॉल द ईस्टर्स ऑफ द लॉन्ग चेन फैटी एसिड विद द लॉन्ग चेन मोनोहाइड्रोक्सी या मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। वैक्सेस नेचर में इनकी वास्ट एग्जिस्टेंस है। फॉर एग्जांपल बीज वैक्स हैं, स्पर्मेसिटी हैं, कार्नोवा वैक्स हैं। सो फॉर एग्जांपल दिस वन इज़ जेनेरिक स्ट्रक्चर ऑफ द बीज वैक्स, जिसमें फैटी एसिड जो हैं ये फॉर एग्जांपल ईस्टर बॉन्ड है, इसमें एक तरफ अल्कोहल है, दूसरी तरफ कार्बोक्सिलिक फैटी एसिड्स हैं। ये कार्नोवा वैक्स है। तो ये जो वैक्सेस हैं दीज आर सिंपली the esters of the long chain fatty acid with the long chain monohydric alcohols. Complex lipids में as I said के इनमें स्फिंगोलिपिड्स भी हो सकते हैं, स्फिंगोसिन एज एन अल्कोहल भी हो सकता है और ग्लिसरॉल एज एन अल्कोहल भी हो सकता है। फैटी एसिड इनमें कॉमन रहेगा, लेकिन इन दो के अलावा अगर कोई एडिशनल कंपाउंड साथ में अटैच होंगे तो वी कॉल इट एज अ कॉम्प्लेक्स लिपिड। फॉर एग्जांपल एक ग्लिसरॉल का एक जनरल स्ट्रक्चर है। ग्लिसरॉल के जनरल स्ट्रक्चर के साथ दो हाइड्रोक्सल के साथ फैटी एसिड अटैच है और एक के साथ
phosphate group attached. These are called as the phospholipids. Phosphatidyl inosine, phosphatidyl serine, इनके साथ serine अमाइनो एसिड अटैच है. phosphatidyl इथेनॉल अमीन, तो ये इथेनॉल अमीन अटैच है. phosphatidyl choline, ये choline का मॉलिक्यूल अटैच है. The fatty acid making estrous bond with the glycerol, but in addition to containing the other small moieties, they are called as the complex lipids. So general classification of the lipids is such that we classify them in a simple lipids, compound or the complex lipid, derived lipids, and the miscellaneous lipid, जिनको हम basically precursor lipids भी बोलते हैं. Simple lipids के example fats, oils, and the waxes हैं. Fats या oil, these are the esters of fatty acids with the glycerol है. For example, triglyceride है, monoglyceride है, diglycerides है. Or waxes, esters of fatty acid with the alcohol other than the glycerol. Glycerol के अलावा long chain alcohol and the monohydric alcohol. Compound or complex lipid, these are the esters of the fatty acid and the alcohol with some additional groups. For example, phospholipids. The phospholipids हैं. Phospholipids, they are composed of fatty acid, glycerol, और glycerol के अलावा कोई और अगर को है तो स्फिंगोसिन हो सकता है, और इसके अलावा फास्फेट ग्रुप है, नाइट्रोजनस बेस है. तो इनमें फास्फोलिपिड में फैटी एसिड, अल्कोहल और अल्कोहल ग्लिसरॉल भी हो सकता है और स्फिंगोसिन भी हो सकता है. और इसके अलावा जो एडिशनल मॉलिक्यूल्स हैं वो फास्फेट हो सकती है, नाइट्रोजन बेसेस हो सकती हैं, एक्सेट्रा. इनमें फॉर एग्जांपल ग्लाइसिरोफॉस्फोलिपिड है, स्फिंगोफॉस्फोलिपिड है, इनकी एग्जांपल है. ग्लाइकोलिपिड्स हैं या ग्लाइकोस्फिंगोसिन्स हैं, दे आर composed of the fatty acid and sphingosine as an alcohol and the sugar moieties, क्योंकि ये glycolipids हैं, glycosphingolipids. So proteolipids, name से obvious है, composed of lipids and the proteins. अब उन lipids में fatty acid and alcohol और इनके अलावा protein moieties attach होंगे. For example, VLDL हैं, very low density lipoproteins हैं, low density lipoproteins हैं, high density lipoproteins हैं, और सल्फोलिपिड्स, इनमें लिपिड्स के साथ एडिशनल मॉइटीज सल्फर को अटैच होती हैं. डिराइव लिपिड, दे आर द हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट्स ऑफ द लिपिड्स. फॉर एग्जांपल कीटोन बॉडीज हैं, इकोसनाइड्स हैं, यानी फैटी एसिड्स, हायर मॉलिक्यूलर फैटी एसिड्स हैं, स्टेरॉइड्स हैं, अल्कोहल्स हैं, फैटी एसिड्स हैं. और मिसेलिनियस लिपिड जो जिनके मॉलिक्यूल एक्ट करते हैं प्रिकर्सर. So the fatty acids क्या है? Fatty acids are basically the organic compounds having methyl group at the one end and the carboxyl group at the other end, and they are frequently occurring in the fats, and they make the esters bond with the alcohol, for example sphingosine or the glycerol, and they may also occur as a free fatty acids. So lipids में जो high energy कंपाउंड होते हैं वो बेसिकली फैटी एसिड होते हैं. इन्हीं फैटी एसिड की बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू जो एसिटाइल कोए बनते हैं वो क्रेब्स साइकिल को ज्वाइन करते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. सो और जनरली जो नेचुरल फैट्स हैं उनमें जो फैट्स अकर होते हैं, जो फैट्स प्रेजेंट होते हैं वो दे आर द स्ट्रेट चेन डेरिवेटिव्स विद द इवन नंबर ऑफ द कार्बन एटम, यानी 10 होंगे, 12 होंगे, 14 होंगे, 16 होंगे, इवन नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स. एंड इनकी फिर दो क्लासेस होती हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. दीज आर द जनरल कॉमन टर्मिनोलॉजीज ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. वो फैटी एसिड जिनमें कोई भी डबल बॉन्ड ना हो उनको सैचुरेटेड फैटी एसिड, और वो फैटी एसिड जिनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो उनको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. अगर फॉर एग्जांपल सिंगल डबल बॉन्ड होगा तो मोनो अनसैचुरेटेड, दो डबल बॉन्ड होंगे तो डाई अनसैचुरेटेड, तीन बॉन्ड होंगे, डबल बॉन्ड होंगे तो ट्राई अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड सो ऑन. फैटी एसिड्स को नेम कैसे किया जाता है? फैटी एसिड, दे आर सिंपल द कार्बोक्सिलिक एसिड बेसिकली. 4 to generally they exist from 4 to 20 कार्बन कंपाउंड्स. तो इनको नेम किस तरह किया जाता है? फॉर एग्जांपल they are named on the basis of the number of the carbon atom, because they are the hydrocarbons, so number of the carbon atom, and the last E is replaced by OIC if they are the saturated fatty acid. अगर ये saturated fatty acid है, the last E है, उस E को replace किया जाता है with the OIC, OIC acid. For example 8 carbon fatty acid अगर हैं
and they are the saturated fatty acids, so they will be named as the octanoic acid. 6 कार्बन है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो फिर हेक्सानोइक एसिड. लेकिन अगर दे आर द अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, इनमें डबल बॉन्ड्स हैं, तो फिर देयर नेम विल बी एंड एट इनोइक एसिड. फॉर एग्जांपल, अगर 18 कार्बन फैटी एसिड्स हैं और इनमें डबल बॉन्ड है